ये ऑनलाइन फॉर्मेट हम सब के लिए नया है। इस प्रोग्राम में हम सब अपने फोन और लोकल कनेक्शंस के साथ जुड़े हैं। तकनीकी खराबियां हो सकती हैं, प्लीज हमारे साथ बने रहें, हमें इनकरेज करें। मूविंग ऑन, पिछले 53 दिनों में हमारी जिंदगियां बिल्कुल बदल गई हैं, शहरों में भी, गांवों में भी। कुछ बुरा हुआ है, कुछ अच्छी बातें हुई हैं। आइए कच्छ की बातें सुनते हैं कि कच्छ में क्या हो रहा है। Here today we have with us Meera Goradia. She has been working in Kutch since the past 25 years and shares a special relationship with the artisans and people here. She, along with the weavers, are working on a book on the Kutchi weaving tradition and its culture for Tara Books. Today, she talks to the weavers in their other avatar of bhajniks, that is bhajan singers, represented by the bhajan mandlis of Bujori and Nakatrana. Over to you, Meera. Thank you, Tanveen. And since you have made me the host for this meeting, I'm going to have to open the door and welcome everybody in for a small peek into this other avatar, as Tanveen has just said. All of you know that the weavers of Kutch make really beautiful handmade textiles. There is another beautiful tradition they also have, and that is of the bhajan satsangs. Just as every weaver's home in Kutch has a loom, every village in Kutch, practically every village in Kutch has a bhajan mandi. And for a lot of us, when we think of bhajan mandis, we imagine really old, probably fuddy duddies who are, getting together and singing bhajans. Since the last few years, we've been seeing a resurgence of sorts. Both young weavers coming back to the practice of weaving thanks to a number of reasons, that is before COVID, that is, and also young people coming back to these traditions of the bhajan satsangs and trying to find meaning over there. We thought for this webinar, when we talk about the issues related to weaving and how the weavers are coping with the Atmanirbhar that they have, we thought it would be nice to give a little peek into this other world of the bhajan satsangs. Because I do believe that both the creation of a beautiful handmade product and a beautiful bhajan, they probably come from the same source. So let me first introduce our panel for this evening. I'll first take you to Naran Bhai. Naran Bhai, he's an excellent carpet and a dari weaver. His products have been selling internationally. He's also steeped in the whole bhajan tradition and is part of the Bujori Bhajan Mandi. Then we come to Khimji Bhai and Haresh, also from Bujori, also part of the Bhajan Mandali. A lot of you from Delhi would probably know Khimji Bhai. He makes beautiful saris. Haresh is also a very wonderful weaver, and hopefully some of you will buy his products in future sometime. In Nakatrana, again we have another Haresh, who is not weaving now, but very much part of the Bhajan tradition, and Bhoja Bhai, who did several other things, but then eventually came back to weaving, to the weaving fold and to the bhajan fold. I'm sorry, this design of the panel is an all-male panel. Doesn't mean that women don't sing bhajans or don't weave, far from it. But due to connectivity, we were not able to reach out to them. I will now switch to taking this webinar forward in Hindi. But I must warn everybody that we are all Gujaratis and our Hindi can be quite atrocious. So please put up with this. Okay. So अभी हम शुरू करेंगे हमारी बातें. मैं पहले नारायण भाई के पास जाऊंगी भुजोड़ी से. नारायण भाई, आप थोड़ा ये बताइए कि ये जो कोरोना वायरस महामारी सब जगह छाई हुई है, इसके बारे में आप किस तरह से सामना कर रहे हैं? क्या आपको डर लग रहा है, आपको चिंता है भविष्य के बारे में, और कैसे पूरी कम्युनिटी का इसके बारे में, क्या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका क्या कहना है, क्या सोच चल रही है अभी कम्युनिटी में? कोरोना जो पूरे विश्व में अभी जो महामारी फैली हुई है,
उससे जब वो स्टार्ट हुई, शुरू हुई, तो उसके जो समाचार सुने फॉरेन कंट्रीज़ के, तो थोड़ा डर। और जब इसके पेशेंट इंडिया में, भारत में आने लगे, तब ये डर थोड़ा और बढ़ गया कि अब कैसे होगा, ये क्या होगा? लेकिन जैसे-जैसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती गई, तो फिर मन में एक एक ढाढ़स सी बंधी कि चलो, पूरे विश्व में है, लेकिन उसके बचने के तरीके तो हैं। तो जो भी है, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिली, वो इकट्ठी की, दिमाग में रहा। फिर अंदर से कुछ जो एक अध्यात्म थॉट्स हैं, विचार हैं, उसको भी कहीं न कहीं दिमाग में लाना पड़ा। क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे थे कि हम अपने अपने आप के लिए कुछ न कुछ सपने सजाए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सभी अब तक सभी कहीं न कहीं, कोई फ्लाइट में घूमने लगा था, कोई कहीं गाड़ी से आ जा रहा था, कोई कहीं नाश्ता कर रहा था। लेकिन जैसे ये वायरस आया, तो पूरी ज़िंदगी जैसे एक अचानक करवट उसने बदल ली, थोड़ा चेंज आ गया। फिर पता चला कि अब तो ये इसको पूरी तरीके से उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम कभी भी इसकी वो कोरोना की चपेट में आ जाएँगे। तो फिर सभी लोगों ने ये सब जो है प्रिकॉशंस लेने शुरू किए। तो मैंने और मेरी फैमिली ने भी ये सब पूरे सारे प्रिकॉशंस लिए, और कुछ अपने आप से पूछा कि ये क्या है? क्या हम इससे बच पाएँगे? तो फिर अंदर से जवाब मिला कि हाँ, अवश्य बच पाएँगे। जो अपने आप को थोड़ा-सा कछुए के, टर्टल की तरह थोड़ा-सा संयम दिखाएँ अपने आप को, और ज़्यादा बाहर ना जाएँ, घर में रहें, बिन ज़रूरी तौर से बाहर ना निकलें, और प्रिकॉशंस लें, जैसे कि जो भी सैनिटाइज़र है, उसका यूज़ करें। ये सब हमने लिया, और अपने आप को थोड़ा दिमागी तौर पे भी मजबूत किया। ये कुछ ऐसा और लगा मुझे। बहुत अच्छा। और जो दिमाग के अंदर जो वायरस है, हमारे अंदर जो वायरस है, उसके बारे में आपका क्या सोच जी, जी। ये हमारा मनुष्य का दिमाग है, वो उसमें वायरस आ जाते हैं, ये बात सही है। क्योंकि हम सभी को कहीं न कहीं से कुछ ईगो होता है कि मैंपना आ जाता है, और कभी किसी के लिए कुछ अंडर एस्टिमेट करते हैं, या किसी के लिए कुछ मन में कुछ जेलसी होती है, तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये कुछ काम नहीं आएगा जीवन में। अगर कुछ शांति पाना है, कुछ पाना है, तो ये सब ईगो है या जेलसी है या मैंपना है, उसको छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए सत्संग ही एक ऐसा है। सत्संग करेंगे, तो उससे हमारा जो दिमाग है, वो हमारा जो मन है, हमारा जो अंतरात्मा है, वो थोड़ा वो अपने वश में आएगा, और हम औरों के लिए प्रेम, भाईचारा, ये सब दिखाएँगे। तो ये जो अंदर का वायरस है, उसके लिए हमारे सत्संग, भजन, संतों की वाणी, ये सब का एक जो है सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा, थैंक यू नारायण भाई। ठीक है, अब मैं जी, जाऊंगी खिमजी भाई और हरीश के पास। अ, आपके लिए प्रश्न थोड़ा अलग है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हरीश अ, अभी युवान है, वीविंग भी करता है, लेकिन वो जब वीव करता है, मैंने सुना है वो भजन गाते गाते उसका वीविंग चलता है। ठीक है, तो थोड़ा आप हमें बताइए, क्योंकि ये तो क्लियर है कि कारीगरी और आध्यात्मिकता का कोई तो संबंध है, क्योंकि जैसे कबीरदास जी बने बुनकर थे, और संत भी बने। रोहिदास चमार थे और संत भी थे, बहुत ऐसे और भी होंगे नाम। तो इसके बारे में आपका क्या सोच है, ये कनेक्शन क्या है, इसके बारे में बताइए। नमस्ते सबको। मेरा
हमारा जो ये बुनकर का काम है वो बहुत सालों से हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ भजन और जो आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो उसका जो रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा है कि कोई भी साधु या संत होगा, उसका भजन का 8 पहर, मतलब जो रात को भी वो सोते रहेंगे तो उसके शरीर में उसका जाप, उसका भजन चलता ही रहेगा। अगर वो दिन में है तो उसका नाम कैसे लेते हैं, तो काम करना तो जरूरी है, तो उसके काम करने के साथ साथ वो भजन भी गाते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, और कहीं जगह पे भी मैंने ऐसे सुना है, मेरे दादाजी ऐसे सब लोगों से, कि जब व्यूअर्स काम करते थे तो उनके रूम के अंदर घुंघरू बांध के वो व्यू करते थे, साथ साथ वो भजन गा सके, क्योंकि तब इतना लिखा हुआ, सब इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो याद लिख सके अपना भजन। वो एक बार भी भजन सुनते, उनकी याद शक्ति इतनी अच्छी थी कि एक बार भी भजन सुनते तो वो भजन उनको याद रह जाता। तो जैसे भी अभी आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जैसे वो सबके जहाँ गाय बछड़े सब थे, तो माखन उतारने के लिए वो ऐसे वलोणा करते, तो उसके अंदर माखन निकालने के लिए वो ऐसे वलोणा करते, तब वो प्रभातिया गाती थी, जो औरतें थी वो प्रभातिया गाती थी। तो उसका और उसका कनेक्शन है, सेम टू सेम ऐसा ही व्यूवर और हमारा ये भजन का एक ऐसा कनेक्शन है कि उसका कोई भी जोड़ नहीं है। तो हम भी वीविंग करते हैं, तो मैं भी, मेरा ही दाखला ले लेते हैं तो उदाहरण, मैं भी वीविंग करता हूँ, तो मुझे भजन गाने का ऐसे हो ही जाता है। वीविंग करते करते भजन गाना ये तो आम बात हो गई। उसमें जैसे कबीर साहब हैं, हमारे भी यहाँ संत हो गए, कचरामल पतरामल भगत, वो भी ऐसे वीविंग का काम करते थे और बहुत बड़े संत हो गए। वो भी वीविंग के साथ साथ अपना भजन का की कड़िया उसमें गूंजती रहती थी। जो भी कपड़ा बुनता तो वो सिर्फ कपड़ा ही नहीं बनता, उसके अंदर वो जो भी शक्तियां हैं वो शक्तियां उसमें जुड़ जाती। तो मेरा मानना यही है कि भजन और व्यूअर बनकर का जो भी ये बुनाई जाता है, तो उसका और उसका एक अटूट संगम है। तो आपका कपड़ा तो कुछ बहुत ज्यादा खास होगा, क्योंकि आप भजन गाते गाते उनको इसको बिनते हैं। जी बहुत जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं जाऊंगी नखत्राना, हरीश भाई और भोजा भाई के पास। और हरीश भाई, भोजा भाई, आपके थोड़े ख्याल बताइए कि ये कारीगरी और आध्यात्मिकता का क्या संबंध है, क्या राज है इसमें, आपके थोड़े विचार बताइए। हेलो, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। अध्यात्म और कला दोनों अंतर की गहराइयों से उभरते हैं, तो दोनों का मिलन तो वहीं हो जाता है और धीरे धीरे उसकी गहराइयाँ कला के क्षेत्र से या अध्यात्म के क्षेत्र से हम पा सकते हैं। भजन और कला या अध्यात्म वो गहराइयों से उत्पन्न होता है, तो यही उसकी एक ऊंचाई है। तो जैसे जैसे हम भजन में बढ़ते हैं या अध्यात्म में बढ़ते हैं या कला में बढ़ते हैं, तो वही उसकी गहराइयाँ हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू। आपने एक बार मुझे बताया था कि जैसे कि जो कारीगर होता है हमेशा एकांत में काम करता है, उसको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, एटलीस्ट पहले जमाने में, तो ये बात आपने बताया था। और आपने कहा था कि ये एकांत बहुत जरूरी था एक मन का एकाग्रता को कायम करने के लिए, और उसके लिए शायद कारीगर और आध्यात्मिकता का तालमेल बहुत आसानी से होता है। हाँ, ये भी सही है। ये हमारी एक बार ये ऐसी बातचीत हुई थी, मुझे अभी याद आ रहा है। हाँ 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 हाँ।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। हम नारायण भाई से थोड़ा बताएंगे कि पूछेंगे कि जो खास करके कच्छ का जो भजन, वैसे ये भजन सत्संग की प्रथा तो हर समुदाय में है, लेकिन जो कच्छ की जो प्रथा है उसकी विशेषता थोड़ी हमें बताइए, खास करके जो बानी आप गाते हैं जिसे आराधी बानी कही जाती है, उसके बारे में, ये प्रथा के बारे में कैसी होती है, क्योंकि ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं लेकिन ये सामाजिक भी होती है, ये कल्चरल भी होती है, इसके साथ बहुत सारी चीज जुड़े हुए हैं। और ये आप इस कैसे गाते हैं, आपके जो संतार है इसके बारे में थोड़ी बताएं, थोड़ा हमें इसके बारे में आप बैकग्राउंड दीजिए। जी, ये हमारी भजन परंपरा आराधी बानी। मैंने मुझे ये मेरा विचार ये है कि पुराने समय में जो हमारे लोग थे, कहीं भी वो कोई जॉब नहीं था, उनका हार्ड वर्क था। कहीं भी वो काम करते थे, वीविंग करते थे या खेती में काम करते थे या कहीं पत्थर निकालने जाते थे, कहीं मिट्टी उठाने के लिए जाते थे। तो पूरा दिन वो हार्ड वर्क करते थे और एकदम ईमानदारी को जब वो काम खत्म करके घर आते थे तो वो एकदम वो थके मांदे होते थे। पूरे दिन उनको कुछ खुशियाँ मिली, कुछ गम मिले और सभी की यही हालत थी। तो फिर ये बातें वो किससे शेयर करें? तो उन्होंने कुछ ऐसा खोजा कि अपने इष्ट देव को, अपने स्वामी को ये बातें सुनाने का तय किया। और कुछ तानपुरा, तंबूरा जैसा कुछ कोई साधन लेकर वो बैठ जाते थे और अपने अंदर की जो बात थी, गम थी, गम थे, खुशियाँ थी या जो भी था वो अपने इष्ट देव से वो शेयर करते थे। और वो ये जो बातें थी वो दिल की थी। कभी कुछ माँगने की ख्वाहिश थी अंदर भगवान से, अपने इष्ट से, या कभी कुछ उसको थैंक यू बोलने का था, तो वो अंतर से एक अंतर्नाद, आर्तनाद निकलता था। वो एक प्रार्थना की जैसे था। तो वो अंतर की जो वाणी निकलती थी वो एक आराध की तरह अरदास थी। तो वो ऐसे उसका नाम आराधी वाणी पड़ा। और ये धीरे-धीरे करके पूरे जीवन में, पूरे समाज में ये आ गई। और उस समय में कुछ और एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे। अपने अपनी बात कहीं कहने की, एक्सप्लेन करने के कोई इंस्ट्रूमेंट थे नहीं। तो ये चलने लगी समाज में पूरे। फिर हमारे जो भी अच्छे-बुरे जो सामाजिक प्रसंग थे, कहीं शादी-ब्याह है, कहीं कोई हमारा कोई रिलेशन में कोई स्वजन कोई एक्सपायर हो गया है, तो उस समय जो लोगों की हमारी जो जो भी अंदर की बात थी वो भजन के स्वरूप में बाहर आती थी। तो ऐसे करके ये समाज में हमारी परंपरा चली भजन गाने की। तो और कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक के थे नहीं। एक संतार माने तंबूरा और कुछ मंजीरा या करताल वो हुआ करते थे। तो उससे ये चलने लगी समाज में ये परंपरा और अभी तक चली आ रही है। फिर जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा तो ये सिनेमा वगैरह आए और भी जो एंटरटेनमेंट के इंस्ट्रूमेंट आए, उस समय लोगों का जो एंटरटेनमेंट के लिए कहीं और जाने लगे। तो उस समय ये जो परंपरा थी थोड़ी सिकुड़ने लगी, ऐसा हमको लगा था। कुछ समय ऐसा हुआ कि शायद अब ये विलुप्त हो जाए। हमारे बुजुर्ग हमको भी कहा करते थे कि अब हमारे भजन, हमारे जो भी सामाजिक प्रसंग होंगे, तब तुम सीडी प्लेयर बजा के करना, आपको तो आता नहीं है। आप यंग लड़के तो ये अब सीखने वाले हो नहीं। तो उस समय कुछ ऐसा, कुछ चिंताएँ, कुछ वरिश थी। लेकिन फिर कुदरत ने कुछ ऐसा संकेत किया, आज से 7-8 साल पहले हमारे भुजोड़ी गाँव में और हमारे और जो गाँव है वहीं पर यंग लड़कों को ऐसा कुछ अंदर से ऐसा कुछ स्फुरना हुई। कुछ ऐसा लगा इस भजन वाणी की तरफ जाने का कुछ ऐसा रास्ता मिला। तो हमारे गाँव में
3-4 लड़के जो एकदम यंग थे, उन्होंने शुरू किया ये भजन बानी सीखने का, और हमारे बुजुर्गों से ये सुना। फिर आज की जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल, और उसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग किया हमारे बुजुर्गों का, वो रिकॉर्डिंग करके सुनते, फिर उसको सुनते-सुनते गाने सीखने लगे। तो मुझे जब पता चला तो मैं भी उनके साथ बैठने लगा। ऐसे करते-करते आज तक हमारे गाँव में 15 से 20 यंग लड़के हैं, मुझसे भी छोटे। वो अब एकदम माहिर हो गए हैं भजन सुनने में। और जो आज की जो ज़रूरियात है कि अ, जो हमारे पीएम ने कहा कि खुद के ऊपर, अ, सॉरी मैं वर्ड भूल गया। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर भजन गाने में हमारी मंडली आत्मनिर्भर हो गई। और अब जब हमारे जो भी हमारे समाज में कहीं से हमको बुलावा आता है, तो हम ये भजन गाने के लिए हमारी मंडली जाती है। इस तरह हमने ये संजोए रखा है, हमारी जो परंपरा है उसको अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसको आगे जीवित रख। के लिए बढ़ाया है। थैंक यू नारायण भाई, थैंक यू वेरी मच। तो अभी जब आपने इतना सारा बताया है, तो अभी तो हमें एक दो भजन तो सुनना पड़ेगा। रियली अभी हम भजन की ओर चले और उससे थोड़ा स्वाद हम चखे। तो पहले भुजोड़ी मंडली से हम शुरू करें। तैयार हो? चलो शुरू कीजिए। गुरु रामानंद और कबीर साहब बैठे थे, उनके विषय पे कुछ मंथन था, कबीर साहब को कहना था, प्रश्न कुछ। तो वो पूछने के लिए कबीर साहब उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या है, मेरा मन जो है वो एक जगह पे नहीं टिकता। तो उस विषय पे ये पूरा भजन है कि मैंने गंगा गोमती जो भी नदियां हैं उसमें नहाया, लेकिन मेरा मन जो है वो नहीं नहा पाया, अंदर कोरा ही रह गया। इसमें ऐसे भजन में पूरा आता है। फिर ऐसा आता है कि जो दीपड़ा सी चित्ता वो सबको मारा, लेकिन मतलब अंदर से, तो लेकिन वो मार नहीं पाया, मेरा मन नहीं मारा उस चीज को। और इसके अलावा एक और भी है, खेतर खेड़ा पत्थरा खेड़ा, मैंने इतने इतने बड़े काम किए लेकिन मेरा मन है वो मेरा नहीं मानता। तो इसके ऊपर पूरा भजन है कबीर साहब का। मेरा कल का भरी दे आनंद का, आनंद का गुरु जी आनंद का, मेरा कल का भरी दे आनंद का। आनंद का गुरु जी आनंद का, मेरा कल का भरी दे आनंद का। गंगा नाया में गोमती नाया, गंगा नाया में गोमती नाया, मेरे मन का मेरा का भरी दे आनंद का। आनंद का गुरु जी आनंद का, मेरा मन का भरी दे आनंद का। सावज माया में जीवरा माया,
सावज मारिया मैं जीपना मारिया मत्तानु मारिया मेरे मन का मेरा पिता भरी दे आनंद का मत्तानु मारिया मेरे मन का मेरा पिता भरी दे आनंद का आनंद का गुरु जी आनंद का मेरा पिता भरी दे आनंद का आगे तर केड़ा में बांधरा केड़ा आगे तर केड़ा में बांधरा केड़ा मत्तानु केड़ा मेरे मन का मेरा पिता भरी दे आनंद का मत्तानु केड़ा मेरे मन का मेरा पिता भरी दे आनंद का आनंद का गुरु जी आनंद का मेरा पिता भरी दे आनंद का कहत कबीरा सुनो मेरे साधु बड़ कबीरा सुनो मेरा साधु तो मांग का रामानंद का मेरा पिता भरी दे आनंद का मैं तो बाल का रामानंद का मेरा पिता भरी दे आनंद का आनंद का गुरु जी आनंद का मेरा पिता भरी दे आनंद का Meera, you please have to unmute yourself. You are muted. जिनाम आप ये जरा जीनाम का मतलब समझाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि भजन के में जीनाम क्यों कहा जाता है? जो भी नाम है, नाम आप समझते हैं कि जो भी हर चीज का नाम है, भगवान जो भी शरीर में भी ओम एंड फॉर्म, जो हमारा श्वास रूपी डोर चल रहा है, उसको भी जी कहा है, जी नाम। वो जो नाम चल रहा है उसको जी नाम कहा है। बहुत अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। हरीश भाई और भोजा भाई, आप अगले भजन के लिए तैयार है? हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है, थोड़ा बताइए आप क्या कौन सा भजन किसका गाने वाले हो, थोड़ा उसका अर्थ समझाइए। हम नखत्राणा से हमारी मंडली आप सबका स्वागत करती है। बीच में जो बैठे हैं वो भोजा भाई हैं। नमस्ते। इसके पास में रवि भाई। नमस्ते। नमस्ते। और हेमराज भाई। नमस्ते। चमन भाई। नमस्ते। ये सब हमारी मंडली नखत्राणा से आप सबका स्वागत करती है। हम एक कबीर साहब का जो भजन है जो हमारी काया पे जाता है वो लेंगे आज। तो उसके पहले से शब्द हैं, चुन चुन माटी मैल बनाया, मूरख का घर मेरा, जमड़ो आओ से जीव लेवा, क्या उतारा तेरा। और इसका भावार्थ ये होता है कि बहुत चाहत से हम अपना शरीर रूपी महल को सजाते हैं और इससे आसक्ति बना लेते हैं और अनेकों सामान से इसे सुसज्जित करते हैं या तो उसको करने का ऐसा प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही इस महल से आसक्ति हो जाती है। महल को अपना ही जानते हैं
पर यम रूपी काल जब आता है तो यहाँ धरा रह जाता और कुछ और साथ कुछ नहीं साथ नहीं रहता। हरीश भाई एक ही फोन इस्तेमाल करें प्लीज, वो एको आ रही है। और दूसरा चरण है जाडा पैरो झीणा पैरो पैरो मलमल साचा, रुपये गज का रेशम पैरो तोय मरण के आशा। और कपड़ा या पतला हो या बहुत मोटा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो बहुत मूल्यवान हो, पर आखिर तो पहनने ही काम में आता है। मौत तो एक दिन आएगी, सोना पहने, रूपा पहने या हीरा मोती, ये तो अनिवार्य घटना है, शाश्वत सत्य है। शायद मरने के बाद माता पूरा जन्म रोती है, बहन 12 मास, घर की नारी या पत्नी बहुत क्षणिक शोक मनाती है। जीना कितना, एक दिन, 2 दिन या फिर 50-100 बरस, फिर भी मरण की आस तो सदाए रहती है। ये आखिर खाक में मिल जाना है, अपने पवन के साथ ही मिट्टी से मिल जाना है। तो ये भजन लेकर ये हम प्रस्तुत करते हैं, चुन चुन माटी महल में।
जी नाम। तो ये वेबिनार में अभी है कि बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं, तन्वी बता रही थी। हम यहाँ समाप्त करेंगे और प्रश्न के दौर में चलेंगे, लेकिन ये सेशन समाप्त करने के लिए मैं सिर्फ मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख ये भजन मंडली के साथ मिली है, भजन सत्संग में मिला है कि ये सत्संग अच्छा गाने के लिए नहीं है, इसमें एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें कोई अच्छा गाता है, कोई थोड़ा वीक गाता है, तो जो अच्छा गाता है, जो वीक है, उसको कवर करता है। और मैं सोचती हूँ कि आज की जो समस्या है, ये महामारी की, ये कोरोना वायरस, ये हम सब है, ये हम सब शामिल है। जो वीक है उसको जो 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 मजबूत है उसको हाथ पकड़ना है, जो कमजोर है, और हम सबको साथ में चलना है, और हम सब साथ में है। आगे क्या होगा पता नहीं है, देखा जाएगा, लेकिन हम सब साथ में। तो इस पॉइंट पे मैं अभी हमारा सेशन यहाँ मैं स्टॉप करूंगी और तन्वीन को कहूंगी कि अभी जो व्यूअर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप व्यूअर्स के साथ आगे लीजिए। मेरा बहन गुड न्यूज इज हम लोग बहुत सही टाइम चल रहे हैं। हमने दो भजन गाने की और समय है हमारे पास। अभी 6:10 हुए हैं, हमारे पास लगभग 20 मिनट और हैं भजन के लिए, एटलीस्ट 15 मिनट और हैं भजन के लिए, तो एक भजन और हम ले सकते हैं। I think if you could take that forward, please. So, but aren't there a lot of questions? Don't you want there to be a question answer session? I'm seeing a lot of questions. Yes. Okay, so we can. Okay, so let us start with questions then. If there is time, we can end with a bhajan then. Okay, super. That would be nice. Yes, yes. One of the questions, एक सवाल जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन के टाइम से ही आया था, मैं नाम नहीं बोल पा रही हूँ किनका है, पर ये सवाल है कि how do you think this pandemic will benefit Indian fashion? Do you think the entire change of wave will help us switch from fast fashion to slow fashion? तो ये प्रश्न है कि ये जो महामारी आई है, Bhai and Hare, you can ask them this question. Sorry, to whom? To Khimji Bhai and Haresh, since they're leaving right now. Okay. खिमजी भाई और हरेश, ये प्रश्न आपके लिए है कि ये जो महामारी आई है, इंडियन फैशन में क्या बेनिफिट मिलेगा इंडियन फैशन को? क्या आपको लगता है हम आजकल फास्ट फैशन में जा रहे हैं, फटाफट नया कपड़ा चाहिए, नए एटसेट्रा, क्या हम उसकी वजह से स्लो में जा सकते हैं?
क्या वो बेहतर होगा? क्योंकि कहते हैं स्लो फैशन पूरे वातावरण के लिए ज्यादा बेहतर है। तो आपको लगता है इस महामारी की वजह से हम फास्ट से स्लो हो जाएंगे फैशन में भी, और मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी अपने जीवन में भी? जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोरोना के वजह से, ठीक है, सब लॉकडाउन हो गया। किसी को भी कपड़े की भी दुकान बंद हो गई, फैशन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी हमको, कुछ भी फैशन करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। जो भी घर में कपड़े थे वही यूज किए हमने, नए कपड़े लेने की भी जरूरत हमको नहीं पड़ी। तो वैसे भी हम कर सकते हैं आगे अपने हिसाब से अपनी जिंदगी में कुछ नया भी कर सकते हैं। इसमें बहुत हमको सीखने को मिला है कि जो हमारे पास है उससे ही हम गुजारा कर सकते हैं, नई लोगों को दिखावा कर सकते हैं, वो करना, वो सब करना, वो सब है, जरूरी है, लेकिन उसका भी टाइम है। बट कोरोना ने ये भी सीख दी कि हम अच्छा जीवन बेहतर कर सकते हैं, बेहतर सीख सकते हैं इसके लिए। जी। एक और इसका जो एडिशनल सवाल बनता है वो ये है, अगर हम कम खरीदारी करेंगे तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? किस पे क्या विचार है आपका? वो भी है मैम, बिल्कुल ठीक है। वो भी आपका क्वेश्चन सही है कि ये प्रश्न का जवाब ये देंगे। हाँ, किमजी भाई बताइए, आप बताइए कि जिस तरह मार्केट चल रहा है, सबको पता है कि इससे पहले भी डाउन ही था, इतना मार्केट में अच्छा नहीं था रिस्पॉन्स भी। इसके बाद अभी एक वायरस की वजह से भी मार्केट जो है पूरा खराब है, डाउन है ये कह सकते हैं। तो अभी हम ऐसा क्या करें कि लोगों को वापिस मार्केट में आए, कुछ नया भी कर सके, या इसको ही आगे कैसे हम ले जाएं, क्योंकि जितना अगर हम और बनाएंगे तो वो तो स्टॉक होगा, सेल तो होने वाला है नहीं। तो हम इसको सेल या मार्केट में ऑनलाइन हो या कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले कारीगरों को कि ये चीजें बिकने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक को इसमें तकलीफ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्टिजन को हेल्प मदद करना चाहते हैं, तो ऐसे भी हैं, एनजीओ भी हैं, मतलब तो वो इसके जिसको लगता है कि नहीं ये कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते लेकिन इतना पॉसिबल है भाई, कुछ लोग हैं इनको हम आगे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आगे ले जाएं। ठीक। दूसरा सवाल प्रकाश नारायण भाई आपसे पूछूंगी, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा रहे हैं भजन के साथ? एक सवाल है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं भजन के लिए? हमारे भजन में एक तो ये तंबूरा संतार होता है, संतार। ये जो सितार के एकदम सेम होता है, सितार जैसा, लेकिन हमारा बजाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो संतार होता है, उसमें स्ट्रिंग जो डोरी यहाँ तार हैं वो 5 से लेकर 11 तक होती हैं, और वो सब उनको सही ट्यूनिंग किया करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो कांसे के मंजीरे होते हैं उसको कांसिया भी बोलते हैं, और मंजीरा, ये जनरली हमारे पास ये 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। कोई कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें घड़ों और गमेलों, मतलब एक मिट्टी का पॉट और एक लोहे का जो वो गमला होता है उसको बजाते हैं। कई कुछ एक एरिया में ऐसा होता है, और कुछ एक एरिया में जो जोड़िया पावा जो फ्लूट है, डबल जोड़िया पावा, डबल फ्लूट, ट्विन फ्लूट, वो भी बजाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हमारे बुनकर के जो समाज में हम जो भजन गाते हैं उसमें केवल संतार और मंजीरा ही हम बजाते हैं। अगला सवाल वापस नारायण भाई और खिमजी भाई के लिए है। शिल्पा शर्मा पूछ रही हैं कि आपके जो दरी के डिजाइन्स हैं और आपके जो डिजाइन्स हैं
उसमें भजन का कितना इन्फ्लुएंस है, क्या इंस्पिरेशन है भजन का? भजन का इसमें इन्फ्लुएंस तो ये है कि कुछ जो अंदर की फीलिंग्स है उसमें से कुछ डिजाइन हम डेवलप कर सकते हैं। और एक तो इससे ज्यादा तो ये है कि जो भजन और जो ये बानी है वो गाते गाते या वो अंदर गुनगुनाते गुनगुनाते जो जब हम काम करते हैं तो एक काम करने का एक कंसंट्रेशन बहुत बहुत ही बढ़िया होता है। तो हमको ये भजन बानी है या ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उसका एक रिदम मिलता है काम करने में। जी तो और साथ में जो हमारे जीवन में हमारे आजू-बाजू पर्यावरण में, प्रकृति में भी कुछ ऐसा जो भी दिखता है, वो उससे भी हम इंस्पायर करके हम कारपेट हैं या शॉल है या साड़ी है, उसमें हम हमारे डिज़ाइन्स को इंक्लूड करते हैं। और जी एक नेचर से भी कुछ हम इंस्पिरेशन लेते हैं। जरूर। अगला सवाल मैं नखत्राना से पूछूंगी। सवाल है, do the children of the current generation of weavers also learn and practice this music? क्या आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं क्या वो भी भजन की प्रथा को सीखते हैं और आगे बढ़ाएंगे? भजन की परंपरा तो आगे बढ़ाएंगे ही, पर पहले जितना भजन का जो रंग रहता था और जिसमें इतने इन्वॉल्व होते थे उतने अब इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो पहले से तो कम ही लोग इसमें जुड़ते हैं, क्योंकि सब तंबूरा लेके घूमना नहीं चाहते। सबको डांस क्लास या आज की जो नई जनरेशन है उसको सब म्यूजिकल एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए। तो भजन की जो वाणी है तो उसको ज़्यादातर कम सुनने वाले रहते हैं, क्योंकि उसके लिए अंदर से भी इच्छा होनी जरूरी है। तो अंतर्मन अपना कहेगा तब ही ये कर सकते हैं, और डांस में तो कभी भी जा सकते हैं। जी जी शुक्रिया। एक और क्वेश्चन जो है वो Yes, can I add to that answer? Yes, please. So in some of the discussions that I've been having regarding this book that we are all working on with the younger generation, so they gave some very interesting answers. They said that everything happens at the right time in life. And right now, our time is to do something else. It's to engage with the world, do things, to work, to learn, to have fun. And it doesn't mean that to sing bhajans is not to have fun, but that time will also come. But most importantly, they said that to each one, the call must come from within. Like Haresh, he is very young, but obviously the call has come for him to get into this tradition. Right. So a very interesting way of being very open, and also sort of accepting that everybody is not alike. Right. Right. Thank you, Meera. Priyanka Tyagi is asking how much of sales of weavers is affected or will be affected due to pandemic. How can they come up from this? प्रियंका त्यागी पूछ रही हैं कि सेल्स पर क्या इफेक्ट पड़ा है और इससे बाहर कैसे निकलेंगे। ये जनरल सवाल है। मैं नारायण भाई शायद या खिमजी भाई अगर इसे उत्तर देना चाहते हैं। अगर भुजोड़ी में आप जो सब वीवर्स है इस पे चर्चा तो जरूर होती होगी रोज। तो आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है, इसके बारे में अगर आप शेयर करें। खिमजी भाई, नारायण भाई। अभी 2 महीने से जो सेल है वो बिल्कुल ठप है। कोई कस्टमर आ नहीं रहा है। सब लोग लॉकडाउन में हैं। तो ये तो एक वाजिब है कि इस समय कोई सेल नहीं हो रहा है। लेकिन हम काम करते रहते हैं, स्टॉक बनाते रखते हैं। जैसे ये चलेगा धीरे-धीरे ये जो हमारी लाइफ है वो फिर से पटरी पे आएगी
और जो भी हमको ऑर्डर्स मिले हैं, प्री ऑर्डर्स मिले हैं, वो जब ये ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा तो हम वो उसको डिस्पैच करेंगे। और कुछ नए आइडियाज़ भी लेने पड़ेंगे, कुछ एनजीओ से आइडियाज़ लेने पड़ेंगे, कुछ गवर्नमेंट भी शायद इसके लिए कुछ हमको गवर्नमेंट से भी हम कुछ उम्मीद रखते हैं। और हम आपस में भी कुछ सोचेंगे, कुछ सोच विचार हो रहा है अभी। पिछले 2 महीने से तो बिल्कुल हम वर्किंग है, काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो अभी हम अपने पास रख रहे हैं, अभी सेल नहीं हो रहा है। We could actually ask this question to Bhoja Bhai, because see, Naren Bhai has an export buyer who's committed to him. Right. But Bhoja Bhai supplies his work to other master weavers. So you should ask him how the pandemic is affecting him, because the situation there would be a little different. Bhoja Bhai? भोजा भाई, ये सवाल आपके लिए भी है कि अभी जो महामारी की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से सब काम एक तरह से हो गया है, सब काम ठप हो गया है। जो हमारे पास तो प्रश्न ये है कि ये जो काम ठप हो गया है, इससे निकल के बाहर कैसे आएंगे? आपको क्या लगता है? बताइए भोजा भाई। धंधा के बाद कैसे आएगी? हाँ, मैं तो बड़ा औरत थी, औरत घर में काम करी थी। व्यापार तो थी, तो इन्हें क्या व्यापार को अपनी मजदूर है ना, व्यापार की देखी वाली, व्यापार को कोई रोके नहीं। हम तो मजदूर है। आप बताइए हिंदी में भोजा भाई ने करते हैं, पैसा तो व्यापारी रोकते, साल भर का चलेगा हमारा। मर्सर का काम करते हैं, साल बनाते हैं। मोबाइल चालू है, इसमें आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि 3 मोबाइल चालू है। हमें तो कोई नहीं है। दो बंद कर दीजिए, एक फुल रखिए तो उनका आवाज आएगा। एक ही मोबाइल ऑन रखिए नखत्राना में, दूसरे वाले बंद करो, उनका नाम एक मिनट बोलो। हेलो। हाँ जी भोजा भाई, बताइए। हाँ, बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है और इससे बाहर कैसे निकलेंगे? फर्क तो बहुत पड़ा है, लेकिन हमारा काम है, मैं बनकर का धंधा करता हूँ, साल बनाता हूँ, और खास ऐसी मेरे को तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो जो पैसा रोकता है वो सेठ है, हम तो मजदूरी करते हैं, हमारी मजदूरी चल रही है। आगे देखा जाएगा क्या होगा, जो होगा वो सबके साथ होगा ना, अकेले से किसी को नहीं होगा। इसी के साथ एक और सवाल जुड़ा है, पूछ रहे हैं कि हाँ, क्या हमारे को पता है कि जो ऑर्डर आ रहे हैं ये हमारे पास क्लियर ऑर्डर है कि हम बस बनाए जा रहे हैं और देखेंगे आगे क्या होता है? आई थिंक ये आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया है। Meera, would you like to add to this? Ask Kimji this question, because Bhoja Bhai works for somebody else, while Kimji also does his own production. Kimji भाई, एक प्रश्न आया है जो पूछ रहे हैं कि क्या आपको क्लियर मालूम है आपके प्री ऑर्डर्स क्या है, या आप माल बना रहे हैं और फिर बाद में उसको बेचने जाएंगे?
नहीं, ऐसा कुछ ऑर्डर जैसा नहीं है, हम सिर्फ बाल सामान बना रहे हैं, स्टॉक ही हो रहा है। क्या होगा ये जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए बढ़िया। एक जरूरी सवाल इसी और कोई हम पता है भी तो क्या अभी बताएंगे, क्योंकि जो करना है काम करना है, स्टॉक होगा और आगे जो होगा वो अच्छा होगा। एक बहुत जरूरी सवाल जो हमारे इस स्पेसिफिक प्रोग्राम से जुड़ा है, ये आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ। कबीर के जो दोहे हैं वो हमारे जीवन के कोर तक जाते हैं, हमें अंदर तक इफेक्ट करते हैं। आपके हिसाब से, ये प्रश्न सबको है, आपके हिसाब से आजकल के दिनों में, लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दिनों में, कौन सा उनका एक दोहा हो जो सबसे इस महामारी के टाइम सबसे सही बैठता हो? नारायण भाई, आप कुछ इसमें बोलना चाहेंगे? खिमजी भाई जब तक सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं तब तक उन्हें। हाँ जी। हरीश को पूछिए, हरीश और भोजा भाई को पूछिए। भोजा भाई और हरीश भाई, आप इसका कुछ उत्तर देना चाहेंगे? मतलब ठीक है। हरीश हाँ बराबर है। भोजा भाई फोन को अनम्यूट करके बताइए। हमें एक याद आ गया जी कि कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। क्या बात। जो ये कोरोना का महामारी चल रहा है तो सबकी हम खैर मांग रहे हैं कि सब बच्चे ठीक हो जाएं। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो कबीर जहाँ पे है वहां कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, सब अच्छे हो जाएं। जैसे ये कोरोना है तो ये भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जीना। एट दिस मोमेंट हमारा टाइम अप हो गया है। हम क्वेश्चंस तो बहुत हैं, पर मुझे लगता है कि इस समय हमें बंद करना चाहिए। हमारा 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं खमीर की तरफ से आप लोगों सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू, आप आए, अपना समय दिया और अपनी कला का एक प्रदर्शन दिया, बहुत, और अपनी विजडम का भी एक प्रदर्शन दिया। थैंक यू मीरा, थैंक यू सो मच। आपने ये पूरे कार्यक्रम का सूत्रधार बनी। हमारी खमीर टीम जो बैकएंड में सब कुछ संभाल रही है, थैंक यू वेरी मच। और सारे जो हमारे दर्शक हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय निकाला और आप आए। आई होप सबको ये कार्यक्रम पसंद आया है। और अगले हफ्ते लैला तैयब जी बात कर रही हैं डॉक्टर इस्माइल खत्री, शामजी भाई और अली मोहम्मद ईशा के साथ डिजाइन और क्राफ्ट के बारे में। Last words to you, Meera. No, I think you summed it up very well. I think it was a wonderful session, and I'm so glad we could do it. And all the best to Kameer and all you young people working so hard. And let's hope that things improve very soon for the viewers. Please buy handmade products. That's what all of us need to do. Just keep buying handmade products, because there's so much more involved to it. It's not just a product. It's so much more to it. That's right. Yes. Thank you everyone. जी कहिए। लास्ट में एक श्योर, जरूर प्लीज। प्रॉब्लम ना हो तो बिल्कुल प्लीज शुरू कीजिए।
हीरा हीरा माइक विच जे ये मोंगे मत भाई हीरा हीरा माइक विच जे ये मोंगे मत भाई सच्चे गुरजा पार का सच्चे गुरजा पार का सीधा लाते वक्त मुझे मनरे जी गाल आता संते न्यू गालियों करिया कैसे हरी केड़ियों गालियों करिया दई में केड़ा तो का दरिया मुझे मनरे जी गाल आता संते न्यू गालियों करिया कैसे हरी खाए मजा लटा दीदा सकर जरा सैन भाई खाए मजा लटा दीदा सकर जरा सैन भाई बैठे में जाई करा दिया बैठे में जाई करा दिया ये मुझे मनरे जी गाल आता संते जो गालियों करिया कैसे हरी केड़ियों गालियों करिया दई में गेड़ा दो का दरिया मुझे मनरे जी गाल आता संते जो गालियों करिया कैसे हरी आया सूरा नकर के तेरों रात भाई आया सूरा नकर के तेरों रात भाई मैं करते दया मली बाबो ते दया मली तेरा देता बे मुझे मनरे जी गाल आता संते जो गालियों करिया कैसे हरी केड़ियों गालियों करिया दई में गेला दो का दरिया मुझे मनरे जी गाल आता संते जो गालियों करिया कैसे हरी जी नाम जी नाम जी नाम जी नाम All right, thank you everyone. See you next week on Friday. Bye bye.